चिंता कायला जी। धन्यवाद महोदय। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है यथो धर्मा तथो जयः, वेयर इज धर्मा देयर इज विक्ट्री। I rise today on behalf of the Telugu Desam Party to extend my wholehearted support to the Supreme Court number of judges amendment bill to 2026 Mahoday, my heartfelt gratitude to Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, under whose leadership judicial reforms has been treated as a continuous citizen-centric mission. From the e-courts mission mode project to the fast-track special courts, and today this landmark bill. I would like also to thank Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Chandrababu Naidu ji, for his contribution to building judicial infrastructure at Andhra Pradesh, notably the interim judicial complex at Amravati. I congratulate our Honorable Prime Minister and Arjun Ram Meghwal ji and NDA government for bringing this paramount legislation to the floor. Our country has grown from roughly 36 crore citizens at the dawn of the Republic to over 150 crore today, Mahoday. As India ascends globally, our judicial infrastructure must keep pace. A Vikasit Bharat demands a robust, efficient and easily accessible legal ecosystem. Sir, our constitution begins with a solemn promise: justice, social, economic and political. Judges are the ultimate custodians of our constitution and the sentinels of our fundamental rights, Mahoday. Increasing the sanctioned strength of Supreme Court judges from 33 to 37, excluding the Chief Justice of India, is a commendable and timely reform, Mahoday. But sir, this is not merely an amendment to a numerical figure. Behind every pending case, there is a human story: a farmer waiting for the land dispute to settle, a woman seeking her rightful inheritance, or a family desperately praying for closure. Justice delayed is justice denied, what we always say, Mahoday. Our jurisprudence rests on the bedrock principle that it is better that 100 guilty persons escape than one innocent person suffer. Mahoday, the law is equal for all, whether powerful or common citizen. So I illustrate my strengthening judicial capacity, especially in special CBI courts, is critical. I wish to present a clear case study. उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ जो 2013 से लगभग इतिहास क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, यानी लगभग 13 साल हो गए। अब तक लगभग अलग अलग इन डिस्चार्ज पिटीशन की सुनवाई लेकिन बार होने वाले ट्रांसफर और जजेस की वजह से ये कार्रवाई आज तक पूरी नहीं हो पाई। अगर सिर्फ डिस्चार्ज पिटीशन में ही चिंता कर जी, प्लीज नो, आई एम कॉलिंग अदर पर्सन, नो, you have to stick to the bills. माननीय श्री संजय when will we please speak to the point only, speak on the bill only. पर चिंता लोगों का भरोसा, yes, speak. सिस्टम पर लोगों का भरोसा तभी रहेगा जब इंसाफ वक्त पर मिलेगा, महोदय। सर, जुडिशियल स्ट्रेंथ must not be limited to the apex court alone. धन्यवाद। We must just one. I'll conclude. We must simultaneously empower high courts, special CBI courts and subordinate courts, Mahoday. And I wish also to record the vision of our Honorable Chief Minister toward building world-class legal infrastructure. माननीय श्री संजय सिंह, माननीय श्री संजय सिंह। लूट, बलात्कार, जमीनों पे कब्जा करने की घटनाएं बढ़ रही हैं। उसी प्रकार से जजों की भी संख्या बढ़नी चाहिए और कोर्ट्स की भी संख्या बढ़नी चाहिए, कोर्ट रूम की हालत भी सुधरनी चाहिए। उस दिशा में ये एक अच्छी पहल है सरकार की ओर से। लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि देश के जिला न्यायालयों में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। देश के हाई कोर्ट्स के अंदर 60 से 65 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 96,000 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। क्या उसके हिसाब से आपके पास जजेज की संख्या पर्याप्त है? क्या उसके हिसाब से आपके पास कोर्ट्स की संख्या पर्याप्त है? अगर हिंदुस्तान की बात हम लोग करें मान्यवर, तो हिंदुस्तान में 10 लाख की आबादी पर एक जज है। विधि आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से, और बार बार आपसे अनुरोध किया गया है कि 10 लाख की आबादी पर कम से कम 50 जजों की नियुक्ति आप कीजिए। निश्चित रूप से आप 33 की संख्या बढ़ाकर 37 सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ आपको कोर्ट्स की भी संख्या देश में बढ़ानी पड़ेगी, और जो आज आबादी के मुताबिक जजों की संख्या है हर स्तर पे, उसको भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ये सरकार से पूछना चाहता हूं
कांसीराम जी का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आज मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में कितने पिछड़े समाज से हैं, कितने दलित समाज से हैं, कितने आदिवासी समाज से हैं, कितने समाज के वंचित तबके से आते हैं? नहीं मान्यवर, उनकी भागीदारी बिल्कुल शून्य है। इसलिए न्याय अगर आप करना चाहते हैं, आज न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, पत्रकारिता हो, सब में बराबर का प्रतिनिधित्व समाज के वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, आदिवासी तबके को देना होगा। इसके साथ साथ मैं अनुरोध यह भी सरकार से करना चाहता हूं, न्याय की स्थापना तब होती है जब ऊपर से लेकर नीचे तक न्याय करता हुआ दिखे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, 15 साल की बच्ची से प्रधानमंत्री लड़ेंगे तो कैसे न्याय होगा? सर, मुझे अपनी बात खत्म करने में समय बचा है, समय बचा है। मैं कह रहा हूं, बोलिए आप बोलिए, पर बिल पर खत्म कर रहा हूं, बिल पे ही बोल रहा हूं सर, बिल पे ही बोल रहा हूं, इतनी देर तक बिल पे बोला। सर, मेरा अनुरोध ये है कि सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक न्याय करती हुई दिखे। 15 साल की बच्ची से प्रधानमंत्री करना चाहिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 15 साल की बच्ची को 15 साल की बच्ची को कैसे करेंगे? धन्यवाद। रिकॉर्ड माननीय सदस्यगण, आपको मालूम है, प्लीज बोलो। संजय सिंह जी पहली बार किसी गवर्नमेंट बिल को समर्थन दिया है और अच्छा पहल है बोला है, अच्छा लगा। प्लीज, झूठ सब असंसदीय है, झूठ असंसदीय है। संजय जी बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, उन्हें बोलने दीजिए। मैंने आपको तारीफ इसलिए किया क्योंकि आपने बिल को अच्छा पहल बोला। दूसरी बात, उन्होंने SC ST रिजर्वेशन जुडिशरी में बताया, ये अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन सरकार जरूर करते हैं, नाम तय तो कॉलेजम करते हैं। वहां SC ST का नाम अगर कॉलेजम नहीं भेजेंगे, सरकार अपने आप से नाम ढूंढ करके अपॉइंट कर नहीं सकता है। इसलिए कहीं गलत मैसेज ना जाए कि सरकार SC ST का अनदेखा किया गया है, गलत मैसेज ना जाए, इसलिए मैं स्पष्टीकरण करने के लिए खड़ा हुआ। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, प्लीज नो प्लीज। माननीय सदस्यगण, मेरा आप सबसे निवेदन है, एक मिनट, मेरा आप दोनों बैठ जाए, इट इज नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। नो, नहीं। माननीय सदस्यगण, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के बारे में कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो सब्सटेंसी मोशन लाना चाहते हैं। अब ये रूल से अवेयर होते हुए भी आप ऐसा करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। प्लीज, माननीय श्री संजय यादव महोदय,